Good morning, students. Welcome to the another session of information and technology. So in the last three class we have discussed many things about the spreadsheet. In the last class we were talking about different sort of formula that we can use in spreadsheet, like formula with cell address, formula with column name, formula with built-in function. Then today in this class we will cover the rest of the thing that is there in this chapter. The very first thing, that is operator. If you are having your book or you're having your soft copy, please open page number 211 or 211. In this first topic, there is a discussion about the different operators that has been used or that can be used in a spreadsheet, and their description is mentioned in the form of a table. In the last class also I told you that whenever you are using a formula and we are having multiple operator or multiple symbol, in that case the operator will execute or operator will work per the rule of BODMAS. So in this table you can get the different kind of operators, like you can see colon, hyphen, or sorry, minus, multiplication, and operator, semicolon. Okay, so similarly there are multiple operators and their description are mentioned. I would suggest you just go through the table and just have a idea about the uses of each and every table. That I'm not going to show it to you. The very first thing that we are going to discuss today, that the different uses of mathematical function. In page number 212 and page number 213, there are 4 to 5 table in which we have a description about the uses of different function. They are maybe mathematical function, they are maybe date and time function, and they are maybe some statistical function and logical function. So we'll try to see the uses of each and every function or some of the function, and I would suggest you can just go and check, and you can just check whether these functions are working properly or not. And one thing I can tell you, that these functions are something very helpful in our day-to-day life. Like the very first one that we have already seen in the last class, that is sum function. I have told you how to use the sum function. This is used to add a value of series of cell. जब आप लगातार बहुत सारे सेल को वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो हम लोग सम फंक्शन का यूज़ करते हैं. Then we have ABS. ABS function is basically return the absolute number or positive number. So like always we use equal to sign. Then ABS के लिए ABS type कर सकते हैं. Okay, you can see over here we are having a kind of pop-up over here on the screen. Then start a bracket. Then you need to write down the number. Normally it returns a negative number into a positive number. So if I'm writing -7 and I'm closing the bracket and I'm pressing enter, it returns the positive number, that is 7. In your book also some examples are mentioned over here, like if I'm writing is equal to ABS in bracket, I'm writing, okay, let me check, change the color scheme to window basic, keep the current to keep the current, don't show the message again, last option. Okay, okay, -4.5 और 4.6. लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न्स. 4.6 माइनस हटा दिया उसने. तो इस तरीके से एवरेज काम करता है. देन वी हैव इंट फंक्शन. इट प्रोड्यूस द इंटीजर वैल्यू ऑफ ए गिवन इंटीजर, एंड द एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर, लाइक इफ आई एम राइटिंग इज इक्वल टू int over here, it's int, inside the bracket I am writing 212. Let me just writing the book give an example in book only. 12.33 inside the bracket I am writing it and just pressing enter. Okay, so what it does in int function, it returns the whole number. ये डेसिमल वाले नंबर को, ठीक है, वो रिमूव कर देते. So over here we have int, then we have sqrt. This is something that you have used in class 7 also, if I am not wrong. Sqrt used to return the square root of a given number. So if I am writing is equal to sqrt, inside the bracket I am writing 16 and press enter. 16 का square root is 4, that I don't have to tell you, you all are very much familiar. So this is how we are using sqrt. round x colon y. देखिए आपको सबका सिंटैक्स भी याद रखना है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उनको सही तरीके से, ठीक है. सॉरी, ROUND in the bracket I have to mention 2 number. The first number that जो भी नंबर आप डेसिमल में होगा आपका नॉर्मली, ठीक है. ये राउंड क्या करता है, ये किसी भी नंबर को राउंड फिगर में रिटर्न करेगा जितना डेसिमल प्लेस तक आप उसको स्पेसिफाई करेंगे. लेट मी राइट 11.455.
उसको हम 2 डेसिमल प्लेस तक डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कोमा दे के मुझे 2 लिखना होगा और इंटर मारेंगे। क्या हो गया, मतलब गलत बनाए क्या हम? ओके, लेट मी जस्ट चेक। Oh, I don't have to use comma, I have to use semicolon. Instead of comma, I have to use semicolon. In calc, it is working like this. So you can see what I have written 11.455, ठीक है, सेमीकोलन 2। इसी को अगर मैं 11.433 कर देता हूँ तो क्या दिखेगा, 11.43। 455 था, 5 के बाद फिर से 5 था, तो उसने 4.46 कर दिया। तो आई थिंक राउंड भी आपको क्लियर है। किसी भी नंबर, डेसिमल नंबर जो लंबे सीरीज़ में है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 3 प्लेस या 4 प्लेस तक है, और आप उसको राउंड फिगर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं राउंड फंक्शन का यूज़ करके। इसके लिए फिर से मैं बता देता हूँ, =ROUND, राउंड, ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ लिखेंगे लाइक सपोज 17.234, ठीक है, जो एक डेसिमल नंबर है। उसके बाद सेमीकोलन देने के बाद आपको करना क्या है, आपको स्पेसिफाई करना है कि कितना प्लेस तक राउंड करना है। मुझे मान लीजिए 1 प्लेस तक ही करना है, यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं 2 3 4 में सिर्फ 2 को चूज़ किया। फिर मोड इज बेसिकली, इसका भी आपने यूज़ किया है, मोड का यूज़ आपने बहुत बार किया होगा। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द आफ्टर द डिवीज़न, ठीक है, जो भी नंबर देंगे, जैसे कि डिवाइडेंड, ठीक है। तो इसमें मैं दे देता हूँ कोई भी नंबर, सपोज 15, इसको मैं डिवाइड दे रहा हूँ 2 से। अच्छा, इसमें बार बार ध्यान रखना है, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। इसको 2 से डिवाइड दूंगा 15 को अगर, तो 2 7 जब 14, 1 इज़ द रिमाइंडर, सो इट विल रिटर्न 1। लेट्स सी, yes, if I'm using mode, I'm writing 16 को semicolon 2, then it will return what, 0, yes, 0. So this is how the mode function works. So what I'm trying to say, tell you that you can use different function for different purpose. I'm not just showing you the example of each and uses of each and every function. It depends on the situation, and I would suggest it's only you who can just check each and every function and just see whether they are working fine or not. So let's see the last one, power, ठीक है। In here we can write power, if I'm writing 6 semicolon 2 and bracket, मतलब 6 to the power 2, 6 square, 6 into 6 36, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अलग अलग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ नीचे फंक्शंस दिए गए हैं डेट एंड टाइम के, उसके लिए भी जैसे हम लोग अगर यूज़ करते हैं =टुडे, एक फंक्शन है, और नॉर्मल ब्रैकेट इंटर मार देते हैं तो आज का डेट दिखेगा, ठीक है। टुडे रिटर्न्स द करेंट डेट, इट रिटर्न द सिस्टम डेट, आपका सिस्टम में जो भी आपका डेट होगा। इसका आर्गूमेंट्स यानी इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, देखिए इसका ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक रहेगा, आर्गूमेंट्स ब्लैंक रहेगा, इट हैज़ नो आर्गूमेंट्स, ठीक है। देन वी हैव नाउ, मतलब अभी करंट डेट एंड टाइम भी दिखेगा टुडे के साथ, टुडे आज का करंट डेट दिखेगा, ठीक है। और नाउ अगर यूज़ करेंगे, कुछ नहीं दिखा। लेट्स सी, नाउ में किट प्रोड्यूस करना, कंटेंट्स नो आर्गूमेंट, ऐसा क्यों हो गया भाई? प्रोड्यूस द करंट डेट एंड टाइम, इट should shows the, okay, let me just write NOW, ब्रैकेट मैंने दिया है, एंटर, why it is displaying like this, okay, I got it. Let's see, I'm telling you, ये हैश, ट्रिपल हैश इस तरह से किस लिए दिखा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप अपने पेज पे, अगर आपके पास बुक है तो आप आ जाइए पेज नंबर 215 पे। इसमें जो एरर है, फर्स्ट एरर, इसमें देखिए, और इस तरह का ट्रिपल हैश या 4 टाइम हैश इसलिए आता है जब आपका सेल का वैल्यू सेल के विड्थ से ज़्यादा हो, ठीक है। सेल का अभी जो विड्थ है, इस कॉलम ई में मेरा सारा कुछ वैल्यू आ रहा है अभी, तो इस सेल का जो वैल्यू है ये कम है, इसको आप जैसे चौड़ा करेंगे, इसको ब्रेथ को इंक्रीज़ करेंगे, देखिए इसका वैल्यू आ गया 18th August 2020 and the current time is 8:09 AM. So this is how we can show the uses of now, ठीक है। ये एक एरर भी हम लोगों ने देख लिया, किस लिए एरर आता है, हैश का एरर आएगा जब आपका सेल का विथ उसके वैल्यू में एकोमोडेट, सेल का विथ उसका वैल्यू को एकोमोडेट नहीं कर पाता, उसको इंक्रीज करने पर वो वैल्यू दिखाई देता है, ठीक है। नाउ के बाद है हमारा ईयर, तो ईयर भी देख लेते हैं हम लोग, =, ईयर, ब्रैकेट के अंदर आपको देना होगा कोई डेट, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई एक डेट दे देता हूँ मैं, लेट मी गिव इट, चलिए कौन सा डेट देते हैं, कुछ भी दे देते हैं,
05/011/2005 रैंडम एक डेट मैंने दे दिया। क्या होता है इससे? ईयर, इट रिटर्न्स द ईयर। वाई नॉट? इट विल it returned, so let me just check once again. It should returns the year is equal to year. It should return the year. It should return the year. Why it doesn't return? Wait a minute, please. Okay, so what we were doing, just we were trying to show you the year uses of year function, but in the case of year function the problem is happening. Like I can tell you, let me just type a different one. Is equal to, I was typing is as per the book syntax, I am following the syntax. Is equal to, in the double invert comma I have to write a date. So 0511, I am writing anything randomly over here, just close it. इट्स शोइंग एन एरर हैशटैग वैल्यू। तो ये भी एक तरह का एरर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 215 पे आपको दिखेगा, अकर्स व्हेन द रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स और ऑपरेंड इज यूज। ठीक है, जब गलत तरह का ऑपरेंड या आर्गूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं तब इस तरह का एरर देता है। सो लेट मी जस्ट चेंज दिस, इफ़ इट विल वर्क और नॉट, आई एम नॉट श्योर। ओके, इट इज स्टिल शोइंग द सेम एरर। देन आई एम यूजिंग without double and comma. Okay, it's showing a different value. I'm not able to understand in which kind of calculation this particular value is getting generated. Okay, we'll try to figure it out some other time, but this is how we are using the year function, month function and different other function. Now let's see the uses of the different function given in the next table, that is in statistical function. So statistical function में आपका सबसे पहले है एवरेज वाला। ठीक है, तो एवरेज का जब भी यूज़ करना चाहेंगे हम लोग, इट प्रोड्यूस द एवरेज वैल्यू ऑफ ए गिवन सेल ऑफ वैल्यूज़। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर आपका है 56, 78, 86, 54। इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब किसी क्लास एवरेज को निकालना हो, किसी सब्जेक्ट वाइज क्लास एवरेज को निकालना हो। अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी मेरे पास 5 मार्क्स से मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का है, इसका एवरेज निकालना है तो 2 तरीका है। इसको मैं टोटल निकाल लूँगा सम, उसको डिवाइड बाई 5 कर दूँगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे नॉर्मल निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल टू सम करूँगा और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, एंटर क्लोज करूँगा, ये टोटल हो गया। एवरेज निकालना होगा तो इसको डिवाइडेड बाय 5। देखिए, सॉरी, यहाँ क्लिक किया मैंने, डिवाइडेड बाय, देखिए 70 आ गया एवरेज। अगर मैं इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, डायरेक्ट मैं एवरेज फंक्शन का भी यूज़ करके इसको करना चाहता हूँ, तो उस केस में कैसे करूँगा? तो उस केस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू AVERAGE, एवरेज ही है, इट्स AVERAGE। ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हैं, आप नंबर्स को लिखते हैं। यहाँ से लेकर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए, ब्रैक क्लोज कर दीजिए। देखिए इससे भी 70 आ गया। तो आप डायरेक्टली एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं, टोटल निकाल कर एवरेज भी कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू बेसिकली रिटर्न द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ द गिवन सेल। तो मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस पांचों में से सबसे मैक्सिमम नंबर्स किसका है मुझे पता करना है। नॉर्मली आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, लेकिन हम अपना दिमाग क्यों लगाएंगे जब मेरे पास ऑलरेडी इतना अच्छा फॉर्मूला है। ये 5 वैल्यूज़ है। अगर मान लीजिए आपको 100 स्टूडेंट्स के बीच में निकालना हो या 50 स्टूडेंट्स के बीच में निकालना हो, जैसे कि हम लोग मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स निकालना चाहते हैं टोटल स्टूडेंट्स की टोटल मार्क्स से, तो मैक्स वैल्यू का भी यूज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैक्स इज इक्वल टू मैक्स, फिर से हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे। आपको हर बार रेंज का यूज़ करना है। ठीक है, रेंज हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। मैं बस ड्रैग कर दे रहा हूँ, G2 से G6 के बीच का मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, इट्स 86। इस तरह से इसका एक अलग फंक्शन है, मिन फंक्शन। देन वी हैव ए डिफरेंट फंक्शन दैट इज़ काउंट फंक्शन, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, तो हम लोग इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जब हमें यूज़ करना पड़ता है आपके एनालिसिस के लिए, आपके रिजल्ट एनालिसिस के लिए। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको हमें पता करना हो कि 90 प्लस कितना हो, 80 प्लस कितना है, 70 to 80 के बीच में कितना है। तो इस तरह की चीज़ों को काउंट करने के लिए हम लोग काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे कि आपका कुछ वैल्यूज़ है, काउंट, and if I'm just selecting the cell from here to here, okay, let me select this also। ठीक है, 6, देखिए कितने का वैल्यूज़ है, 6 वैल्यूज़ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इस तरह से आप काउंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप
और भी अलग अलग सिचुएशन में काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस पर्पस। देन वी हैव लॉजिकल फंक्शन और एंड इफ़। इन तीन तरह के लॉजिकल फंक्शन का यूज़ हम लोग स्प्रेडशीट में करते हैं। क्लास 8 में जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा था तो उसमें लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने 3 देखा था, एंड और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर ठीक उसी तरह का पर्पस है, यहाँ पर नॉट यूज़ नहीं करते हम लोग, इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और फंक्शन जब हम लोग यूज़ करेंगे तो किस तरह का रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। आपके बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इज़ इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ लिखना है, लाइक इफ़ आई एम राइटिंग 3, मैं अब बुक का ही एग्जाम्पल फॉलो करता हूँ। ठीक है, 3 इज़ लेस देन 3 इज़ ग्रेटर देन 6 और सेमी कॉलन 2 इज़ लेस देन 1। मतलब ये दो एक सिचुएशन है कि 3 6 से बड़ा है और 2 1 से छोटा है, तो दोनों फॉल्स है। और हम लोग को पता है कि और वाले सिचुएशन में कम से कम कितने सिचुएशन ट्रू होना चाहिए, एक सिचुएशन ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों फॉल्स था, तो क्या हो गया, फॉल्स। अगर इसी जगह पर मैं लिख देता और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, सेमी कॉलन 4 इज़ लेस देन 4 इज़ ग्रेटर देन 5, उस केस में क्या रिटर्न करता है। देखिए इसमें 5 तो 3 से बड़ा है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन 4 5 से बड़ा तो है नहीं, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। तो और वाले में क्या होता है, जब आपका कोई दो कंडीशन हो, कम से कम दो रहेगा, 3 भी हो सकता है, कम से कम एक कंडीशन भी अगर आपका ट्रू है तो रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू करेगा। सो इन द केस ऑफ यूजेस ऑफ और, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन इट हैव एटलीस्ट वन कंडीशन इन इट्स फेवर। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब हम लोग एंड की बात करते हैं तब दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम एंड श्याम प्लीज़ कम आउट ऑफ द क्लास, ये एग्जांपल मैं हर साल देता हूँ, तो आप लोग सुने भी होंगे अगर मैंने क्लास 8 में बताया होगा। तो राम एंड श्याम प्लीज़ कम आउट ऑफ द क्लास मतलब राम और श्याम दोनों आएंगे साथ में, क्योंकि टीचर ने दोनों को बुलाया है। ठीक है, लेकिन अगर वही कह दिया जाए राम और श्याम प्लीज़ कम आउट, तो राम श्याम को देखेगा, श्याम भी राम को देखेगा, भाई तुम जाओ ना, हम नहीं जाएंगे, अरे भाई तुम जाओ ना यार, बहुत मैडम चाटती है, बहुत सर पे कार मेरे दिमाग ख़राब करते हैं। तो वहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ा सा वर्बल डिस्कशन होगा, फेशियल फाइट होगा, उसके बाद दोनों डिसाइड करेंगे अच्छा ठीक है भाई जान जाते हैं हम इस बार, अगली बार तुम चले जाना। तो हो क्या रहा है, राम और श्याम एक भी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब भी आपके पास कंडीशन हो, एक से ज़्यादा कंडीशन, और अगर आप एंड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों का निकलना ज़रूरी है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। और अगर आप और यूज़ कर रहे हैं तो किसी एक का भी ट्रू होना ज़रूरी है। जैसे एंड का यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू एंड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ ट्रू। मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 5। पहला तो ट्रू है लेकिन सेकेंड इज़ फॉल्स, दोनों फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स है तो क्या करेगा, एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिख दूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी ये भी ट्रू है, फर्स्ट वाला भी ट्रू है, तब क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं वी हैव टू यूज़ बोथ कंडीशन, वी हैव टू गेट बोथ कंडीशन इन ट्रू, देन ओनली रिजल्ट विल बी ट्रू। इफ आई एम यूजिंग और, either of the condition is true then the result will be true। इस तरह से हम लोग ट्रू और फॉल्स का यूज़ करते, ट्रू और फॉल्स में ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। कब, जब हम लोग और एंड का यूज़ करेंगे। अब इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, इफ़ में भी एक एग्जांपल, इफ़ का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में भी हम लोग करते हैं नॉर्मली, जब आपका ग्रेड निकालना होता है हमें, जैसे आपका मार्क्स आउट ऑफ 80 में आया, आउट ऑफ 20 में आया, दोनों को ऐड करने के बाद आउट ऑफ 100 में आया। अब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है कि 91 से 100 वाले को A1, 81 से 90 वाले को A2। तो इस तरह का जब ग्रेड करने वाला फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको मैं किसी और क्लास में दिखाऊंगा किस तरह से उसका फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अभी जो बुक में है उसी को फॉलो करते हैं। लाइक इफ़ आई एम राइटिंग इज इक्वल टू, इफ़ inside the bracket if I am writing 4 is greater than 5 semicolon and 4 semicolon 5 will display 5 since the condition is false। अच्छा, इसमें 3 कंडीशन है, लेट मी, ठीक है, since the condition is false। ओके, देखिए इफ़ का एक डिस्क्रिप्शन को आप समझिए, अगर आपके पास बुक है, इफ़ द कंडीशन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू
it will display the result true, otherwise it will display the false result. So if I'm writing here, I'm not getting it, let me just write it. 4 is greater than 5 and 4 is less than 5, it returns the false. And if I'm writing 4 is greater than 5 को नहीं करके इसको मैं कर देता हूँ 4 is greater than 3 and 4 is less than 6, तभी ट्रू करना चाहिए। यस तो मतलब ये भी एक तरह का एंड की तरह ही काम कर रहा है। इफ़ तभी आपका ट्रू रिजल्ट आपका दिखेगा जब आपका दोनों कंडीशन ट्रू हो, अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स दिखेगा। इफ़ का एक्चुअली में इस तरह का हम लोग यूज़ पर्पस नहीं करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा जिसमें हम लोग ग्रेड्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं इसको। लेट मी सी 91 87 86 77 95 89 67 73, ठीक है। ये मान लीजिए आउट ऑफ 100 में ये मार्क्स है, इतने सारे मार्क्स हैं। इसको मुझे इफ़ में रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं करता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो उसको क्या ग्रेड डिस्प्ले करना है, A1, ठीक है। एल्स इफ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 and a value less than 91, देन क्या डिस्प्ले करना है, A2 होगा, आई डाउट, लेट मी चेक, ठीक है। दो ही वैल्यू देके देखते हैं। एल्स इफ हटा देते हैं यहाँ से। Okay, I will show you. It is not working. It will work. So this is how we are using the if function. Then we have to enter a function in a cell. किस तरह से किसी सेल में फंक्शन इंटर करते हैं, तो इसके लिए नॉर्मली जो स्टेप्स है, इतना स्टेप्स हम लोग फॉलो करते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए किसी सेल में आपको एक फंक्शन इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे। तो नॉर्मल एक ABS का फंक्शन मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ -7.6, इस फंक्शन में मुझे इस सेल में एक फंक्शन यूज़ करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इज इक्वल टू टाइप कर रहे हैं और अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पर अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा। इसमें अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। इंसर्ट में जाऊँगा, फंक्शन में जाऊँगा, अब यहाँ से मुझे फंक्शन चूज़ करना है, ठीक है। जो फंक्शन आपको चाहिए, देखिए हर लेटर से इस ऑर्डर में आपको सारे फंक्शंस दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, मुझे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ सबसे पहला फंक्शन ही ABS, इस फंक्शन को चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आप कैटेगरी भी देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन आपको दिखेंगे। तो ABS चूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, और इसको ओके कर दे रहा हूँ। एरर दिख रहा है तो इसको मैं फिर से जाता हूँ, -7.6, इसको क्लिक करूँगा, इंसर्ट में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, ABS में क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फंक्शन सेलेक्ट करना है, सेल यस से 3 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। क्यों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली द स्टेप्स गिवन ओवर हियर इज़ टू एक्सप्लेन दैट हाउ टू इंसर्ट द फंक्शन स्टेप बाय स्टेप यूजिंग मेन्यू बार। तो इस लंबा प्रोसेस को हम लोग बहुत काफ़ी कम सिचुएशन में इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नॉर्मली डायरेक्टली हम लोग फंक्शन टाइप कर देते हैं। यहाँ पर आपके
स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट दिए गए हैं। अगर आपको अभी मेरे डेमोन्स्ट्रेशन से चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो थ्रू दिस स्क्रीनशॉट इसको, और हम लोग अभी इसमें और टाइम नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉमन एरर। कॉमन एरर में कुछ कुछ ऐसे एरर है जो आपको अलग अलग सिचुएशन में दिखेंगे। हम लोगों ने 2-3 एरर को ऑलरेडी देख लिया किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में आपको एरर देते हैं। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा हूँ, बस आप थ्योरेटिकली इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ट्रिपल हैश या 4 टाइम हैश का एरर तभी मिलेगा जब आपका वैल्यू जो है सेल का वो सेल के विड्थ से ज़्यादा है। हैशटैग वैल्यू तब दिखेगा जब आपका आर्गूमेंट्स यानी ब्रैकेट के अंदर का आर्गूमेंट्स गलत है या गलत ऑपरेंड का आपने यूज़ कर दिया है। हैश नेम का यूज़ तभी आपको होगा दिखेगा जब आप उस तरह के फॉर्मूला को कैल्क रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। नम का यूज़ दिखेगा प्रॉब्लम जब आपको फार्मूला या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है। रेफरेंस का यूज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, हैशटैग रेफरेंस जब आपका सेल एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। और जब कोई नंबर को आप जीरो से डिवाइड देंगे तो वो हैशटैग div जीरो का भी एरर दिख सकता है। तो इतने तरह के कॉमन एरर है जो हमें अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब हम लोग एक्सेल सीट या स्प्रेडशीट में काम करते हैं तो इस तरह के एरर दिख सकते हैं, जिनको हम लोग उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम करके अवॉइड कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह से हम लोग अलग अलग फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो इफ़ वाला यूज़ है मैं उसको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो एंड चेक, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद समझ में आना चाहिए कि फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट कैसे करते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका बुक में जो भी आपका क्वेश्चंस हैं उसको मैं आज क्लास बुक में कुछ दूंगा 1 वर्ड में। आज लास्ट क्लास की तरह 1 वर्ड में कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी कुछ कुछ है। उसके बाद whatever the homework is there we will give you. Yes, in the last class whatever homework we have given, it is not uploaded or posted in Google Classroom yet. We will just try to put it today only. Sorry for the inconvenience, there are some unavoidable circumstances, because of that we are not in a position to just put it in the Google Classroom. Okay, so this is for the day. Thank you everyone, stay home and stay safe.